अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हम तेलंगाना के अवाम के मफाद में बेहतर काम करने, इंश्योरेंस जैसी मुनफरिद स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे कोशिश। मरकज़ से नुमाइंदगी जारी। GST कौंसिल इजलास के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी की मीडिया से बातचीत। राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जामात का जवाब आना चाहिए, तेलंगाना कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव का मुतालबा। कहा, राहुल जमहूरियत की लड़ रहे हैं लड़ाई। हमारा ना कांग्रेस से इत्तेहाद है, ना बीजेपी से मुफाहमत है, तेलंगाना के किसानों के मफाद के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का बयान। लोकसभा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, मानसून इजलास में सिर्फ 37 घंटे हुआ काम। अपोजिशन के ज़बरदस्त एहतजाज के बावजूद 12 बिलों की मंजूरी। नायब सदर जमहूरिया के के लिए अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार रिटायर्ड B सुदर्शन रेड्डी ने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। कहा, ये इलेक्शन महज किसी फर्द के बारे में नहीं, दस्तूर और जमहूरियत के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की है लड़ाई। और ज़ालिम इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। इमदादी सामान के मुंतज़िर फ़लस्तीनी शहरियों को बनाया गया निशाना। ताज़ा हमलों में कम से कम 17 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसील शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मानू भट्टी ने कहा कि हम तेलंगाना की आवाम के मफाद में बेहतर काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस जैसी मुनफरिद स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी मरकज़ से ताउन तलब किया गया। तेलंगाना की खुशहाली समेत दीगर उमूर पर भी हमने GST कौंसिल के इजलास में अपने मुतालबात रखे। आइए देखते हैं भट्टी का ये बयान। And in fact, from the state of Telangana, we wanted that insurance GSTs to be brought it down to the zero. At the same time, we made it very clear, the premium benefits, whatever you are reducing the GST, it has to go to the people, to the policy holders, not to the companies. This is what some mechanism you have to evolve to see to that this whatever we are trying to do should go to the people. Sir, that would be the zero or exemption? Exemption. Insurance, so right? Okay, so the meeting is still underway or it has over? So any states which expressed concerns that they would still want some other rate, or should it be? No. Every state or everyone has wanted it is to be brought it down to the zero, because it is health insurance and life insurance. At the same time, many of the states proposed and told the meetings, the whatever we are reducing, we have to see to that some mechanism has to be evolved to it goes to the people. The benefit goes to the people. And it is for all, sir, or the So group? only for senior citizens? It is for all. It is for all. So the proposal will be submitted to the GST Council. Of course, yes, Now it will be submitted to the mechanism is council. not there. How would the council ensure now that the profit sharing mechanism is not there? How will the council ensure that the benefits That reaches? it comes to the council. No. The meeting takes place in the council, and the council the deliberations takes place. Any date is Some fixed, sir, for no, council? I don't think. Sir, so. you The suggested deli- something on changes on pension. So, could you What clarify? Not pension. Okay. To pensioners. So there is a wider consensus among the members. Sir, and how much the loss for the states and What will be the centers? revenue loss? See, the revenue loss that they are expecting somewhere some 9,700 crores Overall. but overall. कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के इल्ज़ामात पर जवाब आना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने ये रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार 65 लाख असली वोटर्स को हटाकर डुप्लीकेट वोटर बना दिया गया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने हकीकी वोटरों के लिए लड़ाई शुरू की है और जमहूरियत के इस्तेहकाम में हम अहम किरदार अदा कर रहे हैं। Election Commission repeatedly is asking our Rahul Gandhi, but there is no solution. That's why Rahul Gandhi in Bihar election is a big campaign for the democracy. Baba Saheb Ambedkar, Adani, Ambani, only one vote. Rickshaw puller also got one vote. That totally ignoring, and hook and crook they want to win the election in Bihar. That's why this
real voters was removed. Rahul Gandhi rightly fighting for the real voters. The democracy was totally ignored, and they want to win hook and crook in Bihar election. I hope definitely all the people, every voter will support. Even 4 years boy also saying that vote chori, that is the public it has come. So before Bihar election, all should be rectified and real voters should get opportunity for their vote. That is their right. The voter have got a right that should be implemented. Instead of that, the election commission, one side they are doing in favor of NDA government. It is the independent body. Independent body also taking a side. It is unfortunately, it is a bad taste for everybody. So I hope Rahul Gandhi will success in this thing and is touring in Bihar. साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि हमारा ना कांग्रेस से इत्तेहाद है और ना BJP से मुफाहमत है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के किसानों को यूरिया की ज़रूरत है और 70 लाख किसान खाद के इंतज़ार में हैं। KTR ने भी कहा कि हम अपने फैसले खुद करते हैं, हमारे बॉस दिल्ली में नहीं रहते। वो रेवंत रेड्डी पर तंज कर रहे थे। आइए देखते हैं KTR का ये बयान। We are neither part of NDA nor are we part of the India bloc. We are not aligned to either BJP or to Congress. We fought elections in 2014 independently, 2018 independently, in 2023 also independently. So we don't have any bosses in Delhi, other like Congress and BJP. We will take a measured opinion of all of our party seniors, all of our party senior leaders. We will take their opinion, consult, and then possibly take a decision closer to the election day. But one thing I do offer both Congress and BJP, क्योंकि आज शॉर्टेज है यूरिया का, फर्टिलाइजर का तेलंगाना में, और 70 लाख से ज्यादा फार्मर इंतजार में है कि कब मिलेगा यूरिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस भी इस बारे में कुछ बोलेंगे, और मैं एक ऑफर भी देना चाहता हूं उनको। आज यहां पे 2-2.5 लाख मेट्रिक टन यहां पे यूरिया चाहिए तेलंगाना में। अगर राहुल गांधी जी या मोदी जी आके बोलते हैं कि मैं सितंबर 9 तारीख के अंदर आपके यहां पहुंचा दूंगा 2-2.5 लाख मेट्रिक टन यहां के किसानों के लिए, हमारे वोट उनको दे देंगे। जो भी आगे आके बोलेंगे उनको दे देंगे। अगर राहुल जी पहले आके बोलते हैं कि आप 9 तारीख के अंदर आपके यहां पहुंचा देंगे, हमारी सरकार है तेलंगाना में, तो हम कंसिडर करेंगे कांग्रेस को वोट करने का, उनके कैंडिडेट को। मोदी जी अगर आके बाहर आके बोलते हैं कि भाई हमारा है, हमारे पास काफी फर्टिलाइजर। इंदिरा पेरिया दर्शनी सरकारी कॉलेज नामपली हैदराबाद के कॉमर्स शोबे की जानिब से मसनूई ज़हानत यानी AI, मईशत और उससे जुड़े दीगर मौज़ूआत पर 2 रोज़ा सेमिनार का आगाज़ हुआ। हुकूमत तेलंगाना के महकमे तालीम के अफसरान, माहिरीन तालीम, असातिज़ा और मुख्तलिफ शुबों के माहिरीन ने इस सेमिनार से खिताब किया। డిగ్రీ మరియు పీజీ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి AI విత్ ది ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ విత్ ది సోషియో ఎకనామిక్ అనేటువంటి చాలా మంచి టాపిక్, 2 రోజుల సెమినారు। చాలా ఈ రోజుల లోపల అనేక రంగాల్లో అయినటువంటి అగ్రికల్చర్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, మరి అదేవిధంగా డిఫెన్స్ కానీ, మిగతా అన్ని రంగాల లోపల టోటల్గా స్కిల్లింగ్ అండ్ అప్ స్కిల్లింగ్ అనేటువంటిది, నైపుణ్యాల యొక్క అభివృద్ధి అనేటువంటిది జరగాలనేటువంటి దృక్పథంతో జరుగుతున్నటువంటి సెమినార్కి రాష్ట్రం లోపల ఉండేటటువంటి విభిన్న రకాలైనటువంటి డిగ్రీ కళాశాలల నుంచి వచ్చినటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్ కానీ, మరి అదేవిధంగా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు ఇందిరా ప్రియదర్శిని డిగ్రీ కాలేజ్లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో AI అప్లికేషన్స్ అండ్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అనే టాపిక్ పైన వాళ్ళు అద్భుతంగా ఒక సెమినార్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది। ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అని నా యొక్క ఉద్దేశం। రానున్న రోజుల్లో దీస్ AI అప్లికేషన్స్ అనేటివి అన్ని రంగాలలో విస్తృతంగా వినియోగిస్తారనేది ఒక ప్రిడిక్షన్ ఉంది। ముఖ్యంగా మెడికల్ ఫీల్డ్ కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ కావచ్చు, ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ ఎస్పెషల్లీ అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి। ఇవన్నీ కూడా ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్స్లో ఎలాంటి గ్యాప్
of teachers, doctors, entrepreneurs, farmers. Every individual is going to make it more inclusive. So we need to ensure some safeguards while using this artificial intelligence technology. Just now our Honorable Vice Chancellor spoke about Viksit Bharat. This digital India is going to contribute very large extent to achieve Viksit Bharat by 2047. What is Viksit Bharat by 2047? कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मामलात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। सीवी आनंद ने कहा कि इस सिलसिले में 100 टू व्हीलर बाइक्स और दीगर गाड़ियों की मदद से ट्रैफिक पुलिस के मार्शल मौसर खदमात अंजाम देंगे। आइए देखते हैं कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का ये बयान। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस के सौजन्य से दो अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। ये है 100 ट्रैफिक मार्शल और 50 ट्रैफिक बाइक का इसको लॉन्च किया गया है। आप सबको जानकारी है कि हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा फोरम है जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ये सब गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर हैदराबाद सिटी पुलिस के जरिए गवर्नमेंट कहलाता है, तो दोनों अपने पार्टनरशिप से हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के कई कार्यक्रम प्रोग्राम करते रहते हैं। आपने अभी तक देखा है साइबर सिक्योरिटी पर समिट हुए हैं, नारकोटिक्स पर समिट हुए हैं और वुमेन सेफ्टी पर हुए हैं। तो इसके जरिए हम पब्लिक में ये बताना चाहते हैं कि ये जो 5 आइटम्स हैं वो बहुत ही उम्दा है और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम सीसीएससी के जरिए ये प्रोग्राम टेकअप कर रहे हैं। तो आज ट्रैफिक फोरम ऑफ हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए आज ये ट्रैफिक मार्शल और ट्रैफिक बाइक का उद्घाटन हुआ है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रैफिक हमारे पास ट्रैफिक में दिन बर दिन ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं और ट्रैफिक का एवरेज स्पीड जो है, जो व्हीकल जाते हैं वो उस पर काफ़ी दबाव है। तो इसीलिए ट्रैफिक पुलिस में जितने भी ऑफिसर्स हैं, अभी होमगार्ड हो या कांस्टेबल हो, जॉइंट सिटी तक, उनको मदद करने के लिए हम हर जगह डिप्लॉय नहीं कर सकते। हमारे पास 650 जंक्शन है, 350 में ही हम ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नकली सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का एक सनसनीखेज मामला मंजर आम पर आया। महकमा पुलिस ने इंकशाफ किया कि कम से कम 59 उम्मीदवार जाली बोनाफाइड सर्टिफिकेट के जरिए मुंतखब होकर मुलाजिमतों में शामिल हुए। इत्तलात के मुताबिक हाल ही में CCS पुलिस ने इन उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर ली हैं। महकमे ने फौरी तौर पर उनकी ट्रेनिंग भी रोक दी और मजीद कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये मामला साल 2022 के भर्ती नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया था। हैरत अंगेज तौर पर जाली सर्टिफिकेट जमा करवाने वालों में से 54 अफराद बराह रास्त कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब हुए। आमतौर पर अगर दीगर महकमों में जाली दस्तावेजात का मामला सामने आता है तो पुलिस ऐसे अफराद को गिरफ्तार करती है, लेकिन इस बार खुद पुलिस महकमे के अंदर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जो सबको हैरत में डाले हुए है। तेलंगाना जमात इस्लामी हिंद के नए अमीर हल्का के तौर पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। खालिद मुबशिर के इस्तीफा के बाद ये जिम्मेदारी मखलूआ थी। मरकज़ जमात इस्लामी हिंद नई दिल्ली के प्रेस नोट के मुताबिक बाकी मिकात के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के ओहदे पर फायज रहेंगे। निज़ामाबाद में जेनमेंट लाइफ फार्मेसी का न्यूज़लेटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर अली खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और दीगर कई सरकर्दा और अहम शख्सियात भी मौजूद थी। फतेहपुर के खदीम मकबरे पर 11 अगस्त को पेश आए अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत का सिलसिला जारी है। इस मामले पर दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन अलहाज सैयद अफसर चिश्ती निज़ामी न्याज़ी ने अपने वरंगल के दौरे के दौरान सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मजहबी मकामात पर इस तरह की हरकतें अमन, भाईचारगी और हमआहंगी को नुकसान पहुँचाती हैं। इनके साथ ये मकबरे को, मज़ार को और मस्जिद को वहाँ ईज़ा पहुँचाई गई।
बहुत ही अफसोसनाक हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए शर्म का मुकाम है कि कहीं भी कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहाँ जाकर के ये हरकतें करना हमारे धर्म को और दीगर धर्म के लोगों को शोभा नहीं देता, क्योंकि मज़हब सभी एक है, मालिक सबका एक है। हम लोगों का गुरुओं के साथ जुड़ाव नहीं होगा, हम सुधर नहीं सकते। और आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि बजाय राजनेताओं के साथ जुड़ने के हमें गुरुओं के साथ जुड़ना चाहिए। धर्म क्या है उसको समझना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्वर्ग में लेके जाने वाली चीज़ है, और ये बिना गुरु के ज्ञान के आप सीख नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। जब तक आप शिष्य नहीं बनेंगे, किसी सच्चे गुरु से गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे, ना आप भगवान को समझ सकते, ना आप देश को समझ सकते, ना आप किसी अच्छी चीज़ से इबरत हासिल कर सकते। अगर आपको वाकई आदमी से इंसान बनना है, फिर मेरी बात का वही जोर रहेगा, आदमी से इंसान बने। इंसान जब तक नहीं बनेंगे आप किसी मज़हब को नहीं पहचान सकते। गैरकानूनी होटल और पार्क के जरिए कब्जा करदा अराजी को हेड हुकाम ने मिसमार करते हुए इसे सरकारी इमलाक में दोबारा शामिल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जुबली इंक्लेव मादापुर में 400 करोड़ रुपए मालियती अराजी पर गैर मजाज कब्जे किए गए थे, जिसको हेडला ने आज अपनी कार्रवाइयों के जरिए मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया है। शहर हैदराबाद के मियाँपुर पुलिस स्टेशन की हदूद में आज जुमेरात की सुबह एक अलमनाक वाक़या पेश है, जहाँ एक ही खानदान के 5 अफराद मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। मरने वालों में एक ज़ईफ़ जोड़ा, सास और ससुर, उनका बेटा और बहू के अलावा 2 साला पोता भी शामिल है। मुकामी अफराद ने लाशों को देखकर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस पहुँच गई। मुकम्मल दर्ज करके तहक़ीक़ात का भी आगाज़ कर दिया गया है। इब्तदाई जाँच के बाद पुलिस को शुबा है कि इज्तिमाई खुदकुशी का मामला भी हो सकता है, ताहम असल वजह जानने के लिए जाँच जारी है। एक ही खानदान के 5 अफराद की अचानक मौत ने इलाके में कोहराम मचा दिया है और फिजा सोगवार हो गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। उन्हें कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के रिहायशी के तौर पर शनाख्त किया गया है। షిఫ్ట్ అవుతుందంటే రేపు మార్నింగ్ వచ్చి కలుస్తాలేరా అని చెప్పేసిన. ఇప్పుడు పొద్దున 8:30-9 గంటలకు వేరే వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు. ఇట్లా మాట ఇట్లా అయిందంట కదా అంటే, మా ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఎవరు చేసేది తెలియదు. ఆయన నాకు ఫోన్ చేశాడు, ఇలా అయిందంట అంటే పోయి చూసారండి. నేను ఇక్కడ ఉండేది అమీన్పూర్లో ఉంటాను, అక్కడ లేక్ దగ్గర ఉంటా. వచ్చి ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఏది విషయం తెలియట్లేదు. ప్రజెంట్ అది వాళ్ళ అత్త మామ, వాళ్ళ కొడుకు, 2 వైఫ్ హస్బెండ్ చనిపోయారు. అది ఏ విషయం అయితే తెలియదు. 5 మంది మొత్తం. వాళ్ళది మాది వీళ్ళది కర్ణాటక అండి, సేడం తాలూకా అనంతపురం అని అబ్బాయిది. और बात करेंगे मौसम के हवाले से। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश हो सकती है। आज आदिलाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, हैदराबाद, जगतियाल, भूपालापल्ली, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिर्याल, मेडचल, मलकाजगिरी, मुलुगु, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजदा, सिलसिला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और वकाराबाद अजला में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की गई। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो एहतियात बरतें और चौकस रहें। इस तरह जुमे को भी बारिश की पेश क़यासी की गई है। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। लोकसभा को आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, जिसके साथ ही पार्लियामेंट का मानसून इजलास खत्म हो गया। ये इजलास 21 जुलाई को शुरू हुआ था और तकरीबन 1 महीने तक जारी रहा, लेकिन इस दौरान कार्रवाई बार बार एहतजाज की नज़र होती रही। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बताया कि पूरे इजलास में लोकसभा सिर्फ 37 घंटे मौसर अंदाज में काम कर सकी। उनका कहना था कि अहम मसाइल पर बावाने बहस न होना अफसोसनाक है। अगर तमाम जमातें ताउन करती तो अवामी मौज़ूआत पर ज़्यादा वक्त मिल सकता था। इजलास के दौरान अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंधु और बिहार में जारी SIR मश पर बहस का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। गोवा में असम्बली हल्कों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी के असर नौ तयन का बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, मणिपुर GST तरमीम बिल समेत कई 12 बिलों को इस इजलास के दौरान मंजूर भी कर लिया गया है। नायब सदर जमहूरिया के के लिए अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के मुश्तरका उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड B सुदर्शन रेड्डी ने आज अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। सुदर्शन रेड्डी ने इस मौके पर एक बयान जारी कर कहा कि इंतखाब महज किसी फ़र्द के बारे में नहीं, बल्कि दस्तूर और जमहूरियत के वक़ार की तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। नायब सदर के इंतखाब 9 सितंबर को होगा और इस बार अपोजिशन इत्तेहाद ने अपनी संजीदगी का मुज़ाहरा किया है और मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की। सुदर्शन ने कहा कि नायब सदर जो राज्यसभा के
के चेयरमैन भी होते हैं, उन पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो पार्लिमानी जमहूरियत की आला रिवायात को कायम रखें। अगर वो इस ओहदे पर मुंतखब होते हैं तो गैर जानिबदारी व खार के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। नंबर्स का तो चलते रहता है, उसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं। But do you think, sir, it's an ideological battle? Because yesterday you said... I think so. I have made it very clear yesterday. It is the battle of ideology. And you're hopeful that you will Of get course, a, of course I am across hopeful. the party you will Of get course I am hopeful. You think it's a matter of fact fight given the fact the numbers are with the NDA candidate? No, but because I don't belong to any political party. yes, sir. That is the reason why I think that everybody would support me. And it's a kind of an ideological fight between Of the course it opposition is and so. the NDA. Of course it is so. One message you want to give before nomination, sir? I will give the message after filing the Okay. Thank you. Please. कांग्रेस तेलंगाना से रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने कहा कि नायब सदर का इंतखाब दो नजरियात के दरमियान है, एक सेक्युलर इत्तेहाद और दूसरे गैर सेक्युलर हुक्मरान। उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने गैर सियासी और मुल्क के आइन के लिए गहरी वाकिफियत रखने वाली एक शख्सियत को मैदान में इंडिया इत्तेहाद ने उतारा है। उम्मीद है कि वो नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज हो जाएंगे। This is a fight between two ideologies. One is secular ideology, one is non-secular ideology. So Mr. Reddy is known for secular ideology, though he is not in active politics, he is supporter of secularism. So that is why India Bloc, we selected him as a candidate of Vice President. He came to Central Hall yesterday, he spoke to all the India Bloc MPs. All the MPs are very much impressed, and even before becoming president, he has given a very balanced speech, which is very important for Vice President of India. I hope, cutting across the parties, many people will vote to him so that he will become. और बात करेंगे फ़लस्तीन की। ख़ाब इसराइल की वहशाना कार्रवाई में शुमाल मगरबी गज़ा के इलाके सुदानिया में इमदादी सामान के मुंतज़र फ़लस्तीनी शहरियों पर हमले किए गए, जिसके नतीजे में मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद और 28 दीगर ज़ख्मी हुए। 7 अक्टूबर साल 2023 से ज़ालिम इसराइल ने गज़ा में इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम की जंग छेड़ी हुई है, जिसमें क़त्ल, क़हत, तबाही और जबरी नक़ल मकानी शामिल है। और ये सब बैनुल-अक़वामी बरादरी की अपीलों और बैनुल-अक़वामी अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए जारी है। इस दरिंदगी के नतीजे में 2,10,000 से ज़्यादा अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। उधर दूसरी जानिब आज ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने जनूबी गज़ा के खान यूनुस इलाके में मौजूद पनाहगज़ीरों के खैमों पर हमले किए, जिसकी वजह से मज़ीद 8 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए, जबकि मुतादिद दीगर ज़ख्मी बताए गए हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हम तेलंगाना के अवाम के मफाद में बेहतर काम करने, इंश्योरेंस जैसी मुनफरिद स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे कोशिश। मरकज़ से नुमाइंदगी जारी। GST कौंसिल इजलास के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी की मीडिया से बातचीत। राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्ज़ामात का जवाब आना चाहिए, तेलंगाना कांग्रेस लीडर वी हिम्मतराव का मुतालबा। कहा, राहुल जमहूरियत की लड़ रहे हैं लड़ाई। हमारा ना कांग्रेस से इत्तेहाद है, ना बीजेपी से मुफाहमत है, तेलंगाना के किसानों के मफाद के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का बयान। लोकसभा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, मानसून इजलास में सिर्फ 37 घंटे हुआ काम। अपोजिशन के ज़बरदस्त एहतजाज के बावजूद 12 बिलों की मंजूरी। नायब सदर जमहूरिया के के लिए अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार रिटायर्ड B सुदर्शन रेड्डी ने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। कहा, ये इलेक्शन महज किसी फर्द के बारे में नहीं, दस्तूर और जमहूरियत के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की है लड़ाई। और ज़ालिम इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। इमदादी सामान के मुंतज़िर फ़लस्तीनी शहरियों को बनाया गया निशाना। ताज़ा हमलों में कम से कम 17 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।